Geschenke machen. Bitte schon. Ein Geschenk macht Menschen glücklich. Es gibt keine Regeln, wer muss dem Geschenk geben. Ein Kind konnte seinem Opa oder seiner Oma Geschenk geben oder den Freunden, durch den Nachbarn und sowas weg. Am meisten Menschen am besonderen Tagen, zum Beispiel Geburtstag, Neujahr, Hochzeitstag oder am Fest Geschenk wechseln. Ein Geschenk konnte ein kleiner Pulli, ein teurer Handy, ein Reisegutschein, sowas weg. Es ist komplett egal, was jemand schenken, aber mit dem guten Herz ist wichtig. Aber was geschenkt zu werden ist auch wichtig. Ich erinnere mich, ich hatte mein erstes Fahrrad bekommen, als ich 15 war. Ich war sehr glücklich, aber ein Freund von mir hat ein Moped bekommen, als er 15 war. Dann hatte ich einen Moment gedacht, ich werde ihn kommende Monat ist Geburtstag von meinem Neffe. Ich würde ihm ein Fahrrad schenken. Letztes Jahr hatte ich ihm einen Pulli geschenkt, der schon so alt ist. Wann ich seinen Bruder gefragt, der mir gesagt hat, dass der Pulli wird von ihm gebrochen. Das hat mir ergibt. Nun denke ich, soll ich ihm Fahrrad schenken? Ich denke, das Fahrrad wird von ihm gebrochen werden. Sehr schön. Okay, gut. Ja, klar. Nächste Person. Bitte. Geschenke machen macht glücklich. Egal wer wem was schenkt, aber ein Geschenk bringt immer Glück, Glücksgefühl und wir sind sehr glücklich, wenn wir was also kostenlos bekommen. Das heißt, als Geschenk. Next, wer ist dran? Das Thema Geschenke machen, Geschenke bekommen. Okay, Sanjay? Okay. Geschenk ist nicht nur eine Dinge, sondern eine Feldwolle für unsere Freunde oder unsere Familie. An wichtigen Tagen können wir uns gegenseitig beschenken, zum Beispiel am Geburtstag oder am Hochzeitsfeier. Wir sollten unseren Freunden etwas lustige Geschenke machen. Meine persönliche Erfahrung mit Geschenke machen: vor 3 Monaten hat mein Freund Geburtstag. Er hat mich zum Geburtstagsparty eingeladen. Ich habe ein Motivationsbuch von APJ Abdul Kalam gekauft. Ich habe ihm dieses Buch geschenkt. Mein Freund war sehr glücklich. Das ist alles. Wunderbar. Also ein Buch wäre ein schönes Geschenk, wenn man gern liest. Genau. Dann ist es. Ja. Das Buch von APJ Abdul Kalam und Wings on Fire. Ja. Klar. Das Buch ist gut, natürlich. Wenn man gerne liest, dann ist das Geschenk wirklich wundervoll. Und wenn
jemand nicht, also liest, dann macht das keinen Sinn, natürlich. Kharekuta Khir. Ja? Dann geht das nicht. Natürlich. Also, wenn man das respektieren könnte, man sollte, ja, aber wunderbar, sehr gut. Nächste Person, bitte. Wenn das schon entschieden wurde, dass wir über das Thema sprechen, dann sprechen alle. Okay? Ja, Aditya. Geschenke. Ich gebe viele Geschenke meiner Familie und meiner Freundin. Das ist nicht Indian Kultur und in der Weltkultur. Kultur. Ja. Indian Kultur. Ich war Okay, noch jemand? Shilpa, Sanskriti, Rinki, Reshma, also ein nach dem anderen, bitte schon, alle sprechen über das Thema. Oh, Sie haben das leicht genommen. Ja, Rakesh, bitte schon, Ja. laut und klar. Geschenke bedeutet eine Sache von Ausdrücken deiner Fühlen für jemanden. In vielen Festen wir Geschenk machen unsere Eltern, Freunde und so weiter. Kinder warten auch die Anlass, weil er kennt, dass etwas für das von deinen Eltern und er ist sehr glücklich. Das ist alles. Okay. Über ein Thema sprechen. Präsentation. Also das ist eigentlich Teil der Prüfung, sollten wir verstehen. Wenn wir über ein Thema sprechen, dann sollten wir ein Schema folgen. Format. Zuerst allgemeine Infos. Und dann Motivation. ja Motivation. Motivation for the presentation. Okay. Motivation. Aber wir als technische Präsentation, wir machen das. Okay. Was Motivation? Okay, was machen Sie? Bitte sagen Sie dann zuerst. Ja, Motivation und dann kommt Introduction. Okay. Und Vorstellen. Und dann kommt die technische Dinge, was genau ich implementiere. Implementation. was genau? Und dann kommt die Ergebnis, die Reports oder Results. Mhm. Und dann kommt die Reference, Links oder ein Okay. White Paper. Ja gut, aber das machen wir nicht. Bei uns ist das nicht so. Wir haben nicht was Technisches. Hier haben wir alles allgemein. Wir bekommen ganz allgemeine Themen. हमारे को ये सब फॉलो नहीं करना. Wir haben dann für Präsentation allgemeine Infos. Also das heißt,
Intro. Hier kann man Definition. Hier kann man Redewendungen. Hier kann man Zitate. Hier kann man Statistik. Okay? Das ist dann allgemein Info. Dann kommt persönliche Erfahrung. Meine persönliche Erfahrung. Dann Situation in meinem Heimatland. Ja. Dann Vorteile. Und wenn manchmal Nachteile auch gibt, dann Nachteile auch. Dann vielleicht Meinung. Meine Meinung. Und dann Schluss und Dank. So ist es bei uns. You should follow this pattern. Sir, Redewendungen or just statistics or yeah, what is this? I mean, This allgemein information means how you start. You can start with some Redewendungen, Sprichwörter, मतलब कहावत मुहावरा अगर कोई याद आए आपको related one, you can say in the beginning. Definition: what is gift? What is sport? What is media? What is means about the topic. कुछ तो टॉपिक के बारे में माहौल बनाना है कि किस बारे में बोलने वाला हूं मैं, तो एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए लोगों को कि इस बारे में बोलेगा ये. डेफिनेशन में भी सिटाट है. सिटाट मतलब कोटेशन, जैसे किसी ने कुछ उस बारे में खास बोला है क्या, कोटेशन हो सकता है. कोई स्टैटिस्टिक, उससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट आपने पढ़ी है, कोई बोले auf dem Land oder in der Stadt. सपोज टॉपिक है आपका गांव और विलेज और सिटी, कौन सी लाइफ बेटर, तो स्टैटिस्टिक आपके पास हो सकती है कि मे बी अराउंड 65 to 70% पीपल आर लिविंग स्टिल इन विलेजेस. सो स्टैटिस्टिक हो गई है. Mehr als 65% Menschen wohnen immer noch auf dem Land. Nach Statistik würden aber immer mehr Menschen in die Stadt kommen. So kann man sagen. Ja? In persönlicher Erfahrung ist normalerweise Ihre Erfahrung. Und wenn Sie keine persönliche Erfahrung haben, dann können Sie noch Erfahrung von der Familie oder Freunden mitteilen. कोई टॉपिक से रिलेटेड आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं हो तो आपने फैमिली मेंबर से, फ्रेंड्स लोगों से कुछ सुना है, किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो तो बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मेरे को बोल दिया कि जिम पे बोलो, फिटनेस स्टूडियो, मैं कभी गया ही नहीं, क्या बोलूं, बट मेरे फ्रेंड्स जाते, मेरे पापा जाते, मैं नहीं जाता, तो आई कैन ऑल्सो टेल दैट एक्सपीरियंस. What I see generally, are they really so motivated early in the morning every day going to fitness studio? So that kind of experience information you can share here. Then Situation in meinem Heimatland means what is the situation? Wir sprechen hier zum Beispiel heute über Geschenke machen. Also Geschenke machen macht Freude. Bei uns ist das eine uralte Tradition. Uralte Tradition, das heißt seit ewig. हमेशा हमेशा से हमारी कल्चर में तो गिफ्ट लेने देने का
ट्रेंड रहा है। Also, die Schönheit des Gebens und Nehmens ist wirklich anders. लोगों को लेने देने की जो एक परंपरा है, that is different. An fast allen Festen machen wir Geschenke, egal wenn ein Kind geboren ist oder jemand tot wäre. Man hat Hochzeit oder Geburtstag. Wir machen Geschenke, so oft tagtäglich. Diese Geschenke, so hier dann allgemeine Infos. यहाँ पे मैंने बोला कि गिफ्ट लेना देना ये तो हमारी बहुत पुरानी कल्चर है। Das macht Freude का मतलब है इससे खुशी मिलती है। Das ist eine uralte Tradition. पता नहीं कितनी पुरानी ट्रेडिशन है। And then I can name the occasions. जड़वा से लेकर शादी और मे बी मैरिज, कोई जन्मे तब भी, घर खरीदे तब भी, कोई मर जाए तब भी, सो गिफ्ट तो का चलता ही रहता है। सो दिस इज देन allgemein Infos. Dann persönliche Erfahrung. Ja, meine Freunde erwarten von mir nicht Geschenke so oft. Ja, ich vergesse eigentlich ständig die Geburtstage. Ja, aber ich habe das Gefühl, die Geschenke sehr wichtig sind. Wenn ich manchmal Geschenke bekomme, machen sie natürlich Freude. Und ich mache auch Geschenk. Mindestens einige Male im Jahr. Ich kaufe meinen Kindern oft Schokoladen oder Kleidungen. Sie erwarten auch an Festen besonders. Zum Beispiel in der Familie wird am Diwali viel gekauft. Wir machen Geschenke einander. Wir feiern so großartig, dann bringen auch für einander etwas. Meine Frau macht mir auch manchmal Geschenke. Ja, meine Kleidung werden von ihr geschenkt normalerweise. So, das ist dann meine persönliche Erfahrung. Letztes Mal habe ich ein Laughing Buddha als Geschenk bekommen. Das ist ein schönes, süßes Geschenk. Das sehe ich immer wieder und dann sagt er immer, ich habe das Gefühl, als ob das Buddha mir Hallöchen sagt. Das vergesse ich nicht. Das finde ich sehr toll. So, das ist dann persönliche Erfahrung. Situation in meinem Heimatland wird eigentlich so oft tagtäglich es gemacht. Meine Tanten, Onkel oder Cousinen, wenn sie uns besuchen, dann bringen sie immer mit. Zum Beispiel Süßigkeiten oder Schokoladen. Das ist so garantiert. Wir essen sehr gerne Schokolade. Und wenn unser Buaji kommt, dann wissen wir, sie bringt etwas Großartiges. Und dann sind wir immer dabei. Ja, also. Und dann gibt sie gleich. Das eigentlich ist meine persönliche Erfahrung. Einige Menschen sind so bekannt und beliebt in der Gesellschaft. आपके रिश्तेदारी में भी आपको पता है कि एक जने तो जरूर लाएंगे और ये भी पता है ये 3 जने नहीं लाते हैं यार गिफ्ट. Die werden so beliebt oder unbeliebt oder einfach, ja, so Handtasche. Ja, Handtasche nach. Ja, die Handtasche ist groß, okay, es muss ja Rasgulla oder etwas Gutes sein. So ist dann, das ist ja so geregelt. Fast alle bringen Geschenke. Und wir auch. खाली हाथ जाना तो जैसे पाप लगता है. Also das Gefühl wurde eigentlich entwickelt. Vorteile. Benefits क्या है Geschenk machen के? Die Beziehung. Eigentlich Freundschaft oder Partnerschaft
geht weiter. Wir bleiben im Kontakt, aber nicht nur im Kontakt. Wir wollen gern einander helfen. Wir fühlen lebendig für Beziehungen, für gute Kontakte sind kleine Geschenke auch so wichtig. Wir vergessen nicht. Aus den Augen, aus dem Sinn, aber diese Geschenke sind immer da und halten wir dann diese Freundschaft sehr gut, positiv. Meine Meinung, man sollte öfter Geschenke machen. इसमें पर्सनली erfahrung और इसमें फर्क है. पर्सनली erfahrung में तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को मिलते हैं कि नहीं मिलते, मुझे कम ही मिलते हैं या खूब मिलते हैं मुझे तो गिफ्ट. सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैं लोगों को गिफ्ट लेते देखता हूँ तो मुझे ईर्ष्या होती है, अरे यार इनको तो बहुत मिलते हैं, मेरे को तो मिलते ही नहीं. या फिर मैं खुद गिफ्ट देता लेता हूँ. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. और माइनूम में मैं क्या मानता हूं कि ये अच्छी बात है कि खराब बात है, दिस इज माई ओपिनियन एंड ओनली वन डायरेक्शन. दोनों इसमें घालमेल नहीं करनी. या तो बोलना है कि आप इसके फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, दैट्स इट. एक साइड ही जाना है इसमें. So, ich denke, Geschenke machen ist sehr gut. Ich halte das für positiv. Ich bin dafür. Ich bin dafür. Ich halte das für positiv. So kann man wirklich in der Gesellschaft richtig eigentlich also Beziehungen schaffen. Ich denke, es ist ein gutes Symbol. Wir alle haben unsere Vorlieben und Abneigungen und die Geschenke machen uns beliebt und unbeliebt oder neutral. So, ich bin dafür. Schluss und Dank. Egal wo Sie wohnen, egal wem Sie was geben, wie auch mein Freund am Anfang gesagt hat, aber Liebe ist wichtig. Und ich würde sagen, wenn Sie jemandem Geschenk machen, dann sollten Sie auch Zeit daran gedanken und bitte schenken Sie Freude, nicht Frust. Das heißt, Sie sollten etwas geben, was jemandem vielleicht passt oder gefällt. Aber natürlich, Liebe ist über alles. So, wir sollten Menschen lieben und Geschenke machen. Das ist dann alles. Vielen lieben Dank, dass Sie mich zugehört haben. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. ऐसे करके आपको इसको खत्म करना है कि थैंक यू बोलना है, क्लोजिंग करना है. ये श्लूस और डांक में क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग में अगले को सुलझाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि अब ये बंद करेगा. ऐसे नहीं कि आपने तो बोल दिया फिर भी लोग सोच रहे हैं और बोलेगा और फिर आपको नहीं हो गया मेरा. ऐसे नहीं, मतलब ये क्लोजिंग में आपको पता चल जाना चाहिए बंदे को कि हाँ अब इसका हो गया है, ये फील आ जाना चाहिए. फिर थैंक यू बोल दिया आपने तो एकदम से ही कि थैंक यू बोल दिया मतलब खत्म. ये स्मूथ सा हर बार थेमा कुछ भी हो आपको ऐसे ही बोलना है, इन्हीं पॉइंट्स के सारे नीचे तक आना है. ओके. और अभी आज दो ही लोगों ने बोला हर दिन टॉपिक दे दूं मैं, आपने तैयार किया हो नहीं किया हो बोलना है. कोई बात नहीं, आज के लिए मैं किसी को डांटूंगा भी नहीं, बट हर दिन अगर टॉपिक दे दिया तो आपको ऐसे लगना चाहिए कि ये मेरा चांस खो गया तो कुछ चूक होगी, ऐसे फील आना चाहिए आपको. अरे यार चूक होगी, है ना. क्योंकि आप लोग एक्चुअली क्या बोलोगे तो बाकी लोगों को हर दिन आइडियाज मिलेंगे, आप नहीं बोलोगे तो बाकी लोग, ये कई लोग तो इसलिए खुश हो रहे हैं अरे बड़ी
वो लोग भी नहीं बोल रहे, बच गया। हैं? अगर मैं अकेला नहीं बोलता तो मुझे कितना खराब लगता। खराब तो तुमको अभी भी लगना चाहिए कि होमवर्क दिया था और नहीं किया। ओके या बेटा धीरे बोल रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज आ नहीं रही प्रॉपर। सर हाँ हाँ अब आ रही है। सर प्लीज आप मेरा टॉपिक दे तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या एक दो पॉइंट बता दीजिए। आप पूछोगे तो बताऊंगा, ऐसे थोड़ी बताऊंगा। जैसे भी मैं टॉपिक दूं तो आप पूछो मेरे से, क्योंकि मैं तो ये ऐसे मानूं। लिखने बैठा था ना मैं, तो हाँ इंट्रोडक्शन में मैं अटक गया तो फिर वो आगे का हो ही नहीं पाया। हाँ अभी आपको मोटा मोटा आइडिया समझ आया क्या? हाँ अब तो सर समझ में आ गया किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हाँ तो आप मतलब ये 15-20 मिनट इसके लिए रख लीजिए, कभी हो पाएगा, नहीं तो ऐसे तो मेरे को तो नहीं लगता हो पाएगा मेरा तो। नहीं होगा तो तब जब हम बोलेंगे। मैं रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर रख सकते हैं हम लोग भाई। ऐसा भी रख सकते हैं कि भाई 2 मिनट मिलेंगे, जिसको बोलना है उसको 2 मिनट मिलेंगे, 2 मिनट्स, ठीक है। तो अब कोई बोले तो बोलो, नहीं बोले तो कोई बात नहीं, है ना। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, डेली 2 मिनट हैं बोलने के। यस एवरीवन 2 मिनट ले सकते हैं, और मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स वो मैक्सिमम है। तो 15 मिनट तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेता है तो देखते हैं। ढंग की बात होगी तो 2 मिनट में ही कही जाएगी, और नहीं आप बैठे रहो, हम देख रहे हैं वो कुछ बोले, फिर वो इधर हो गया, हम देख रहे हैं अब बोले, इधर हो गया अब बोले, तो कुछ नहीं होगा। अदरवाइज 2 मिनट्स में काफी कुछ बोला जा सकता है। आप बोलोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी देखो एक बंदे को मोटिवेशन आया बोलने का। यस बेटू शॉन, या गुड डोंट वरी। Hallo, guten Abend, ich heiße Aditya. Das Thema ist Geschenk. Ich gebe viele Geschenke meiner Familie und meiner Freundin. Das ist Weltkultur. Meine Freundin und Indien geben viele Geschenke. In Festival Geburtstag, Feiertag und Weihnachten Tage. Manchmal wir haben organisiert Party machen. Geschenk ist nicht Geschenk, weil Geschenk Leute fühlen ist. Geld ist nicht wichtig, aber fühlen wichtig. Geschenk ist meinen von Lieben. Okay, ja gut, ja kein Problem, etwas sagen। सो ये कह रहे हैं कि गिफ्ट केवल गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट ओ मोमेंट, उनको नहीं सुनने दिया तुम्हारा। ओके हाँ klar, so Geschenk ist nicht nur Geschenk, Geschenk ist Liebe, das ist ein Symbol। Okay, klar, kein Problem। So, morgiges Thema, was ist dann Thema für morgen? Wir nehmen ein Thema, Holidays, wie man also Urlaub verbringen sollte। ओके आपकी बार ध्यान रखता हूं, कौन म्यूट करता है मुझे? ओके ich bin hier aber das wurde gemutet, kein Problem। बाद में हिस्ट्री देखूंगा कौन है वो जो चाहता नहीं कि सर ज्यादा बोले। ओके या सो वी sollte man Urlaub wertvoll verbringen। ये क्या थेमा कि हमको अपने हॉलीडेज को wertvoll का मतलब ढंग से कैसे मनानी चाहिए, ऐसे मतलब प्लान करना है, ये करना है। ओके वी प्लान जी, ताकि आपको फायदा भी मिल जाए, अभी प्लान भी कर लो सुन सुन के लोगों के आइडियाज। सो वी सोल मान
Urlaub. Urlaub planen. Urlaub. Yes, please. बहुत बढ़िया रहेगा, सेम टॉपिक ही रखेंगे अपन, क्योंकि दो टॉपिक तैयार करना बस की बात नहीं होती, इतना टाइम भी नहीं होता, तो एक ही रखेंगे अपन। 12 बजे होगा जो टॉपिक, वही टॉपिक यहाँ पे होगा। 12 बजे वाले में फुल टाइम मिल जाएगा, तो वहां, यस, वेरी गुड, वहां पे कुछ आइडियाज भी मिलेंगे अपन को लोगों के, और फिर यहाँ पे 2 मिनट का ही बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड, appreciate this suggestion. So das Thema ist Urlaub wertvoll verbringen. Wie? Ja, Sanjay auch. Ja, Sanjay, was sagst du? Ich sagte, über das Thema, meine wertvolle Urlaub Erinnerung. Okay. Ja. Das ist die Titel. Urlaub, wie kann man Urlaub wertvoll verbringen? So इसमें आप अपने हिसाब से बोल सकते हो। टॉपिक मैंने एक कॉमन सा बीच में ऐसे इसको बांधा नहीं, टॉपिक को ओपन रखा है। Urlaub wertvoll verbringen, कोई Urlaub बोले कि कैसे किसके साथ मनानी चाहिए, प्लान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यूं ही थैला लेके भाग जाना चाहिए, राइट? या das also mit Freunden, mit Familienmitgliedern oder allein oder nur zu Hause oder wie verbringt man? Das ist dann ganz offen, ein offenes Thema, open topic, klar? जो कहना, और ऐसे हम लोग प्लान करके एडवांस में 10-5 बार भी बोल लेंगे तो हमारे दिमाग में एक शेमा, एक फॉर्मेट फिट हो जाएगा। Dann haben wir keine Angst mehr। और आप लोग जो भी लिखते हो उसको डायरेक्ट हमारे सामने ही ऐसे मत बोलना कि पहली बार पढ़ रहा है ये खुद ही, है ना? उसको एक आध बार बोल के भी देखना है, so that you also feel comfortable. Ja. Jetzt nehmen wir ein bisschen Grammatik. Was denn? Bevor, nachdem. Das sind zwei Konnektoren, bevor und nachdem. Ich schreibe einige Sätze. Bevor ich nach Hause kam, hatte er mich angerufen. Bevor ich nach Hause kam, hatte er mich angerufen. Ich kaufte mein eigenes Auto, nachdem einen Job bekommen hatte. Before means before, English का before, and nachdem मतलब after. Before, or you can say after that, के बाद, के बाद, के बाद। देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि बिफोर और nachdem जब भी आएंगे, there will be two happenings, both in the past.
there will be two events, two happenings. Zwei Ereignisse. Ereignisse. दो इवेंट्स, दो घटना होंगी, दोनों पास्ट की होंगी, और एक घटना दूसरे के से पुरानी होगी. मीन्स टू थिंग्स, टू इवेंट्स हैपेंड इन द पास्ट. दोनों पास्ट में ही हुई है, लेकिन एक दूसरे से पुरानी है. बिफोर वाली में काम पहले होगा कि बाद में होगा? बिफोर में बाद में होगा. उल्टा है इनके साथ. बिफोर वाला काम बाद में होगा और नाकडेम वाला काम पहले होगा. सो बिफोर इज ऑलवेज एक्टिविटेट zwei und nachdem ist Aktivität 1. Aktivität 1. कि सुनने में ऐसे लगता है nachdem, लेकिन काम हो जाता है पहले ही. Bevor ich nach Hause kam, मेरे घर आने से पहले hatte er mich angerufen, उसने मुझे कॉल कर लिया था. पहले क्या हुआ? पहले कॉल कर लिया. तो पहली बात तो ये कि बिफोर आ गया तो नाकडेम नहीं आएगा, नाकडेम आ गया तो बिफोर नहीं आएगा. ऐसे नहीं कि एक तरफ बिफोर लगा दिया और दूसरी तरफ नाकडेम भी लगा दिया. ऐसा मत कर डालना कि यू विल यूज वन ऑफ द टू कनेक्टर्स. या तो ये यूज करोगे या ये यूज करोगे, एंड कोई सा भी करो. अगर बिफोर कर लिया तो इसका मतलब है कि ये काम बाद में हुआ है, एक्टिविटी सेकंड. तो बिफोर वाला काम बाद में हुआ, तो कोमा के बाद में जो भी हो रहा है वो पहले ही हो गया. और नाकडेम लगा दिया, वो काम तो पहले ही हो जाता है. दिस इज एक्टिविटी 1. तो आप ये समझ जाओ, बिफोर हो गया यहां लगा है, इसका मतलब है ये दूसरा वाला काम पहले हुआ है. सो बिफोर ich nach Hause kam, मेरे घर आने से पहले वो मुझे फोन कर चुका था. डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था. Ich kaufte mein eigenes Auto, nachdem ich einen Job bekommen hatte. पहले काम क्या हुआ? पहले जॉब मिली या कार खरीदी? जॉब मिली, पैसे आए, फिर ही तो कार खरीदी. सो नाकडेम वाला साइड वाला काम जो है, नाकडेम वाला काम ये पहले हुआ. तो नाकडेम ich einen Job bekommen hatte, इसका मतलब है जॉब मिल जाने के बाद जॉब मिल जाने के बाद मैंने मेरी अपनी पर्सनल कार खरीदी. और बिफोर का मतलब यहां पे है से पहले के बाद. मेरे घर आने से पहले वह मुझे कॉल कर चुका था. तो नाकडेम वाला एक्टिविटेट 1 तो है ही. आपका सेंटेंस गलत ही नहीं होगा अगर आप ये कर लो कि एक्टिवेट 1 को मैं हमेशा प्लस कॉम में बनाऊंगा. और भी तरीके हो सकते हैं, बट अपने तो फिट कर लो, अपने दिमाग में ये बात फिट कर लो. आपकी गलती नहीं होगी कि बिफोर वाला सेंटेंस हमेशा प्रेटेरिटुम में बना दो. केवल एक तरीका नहीं है, मैं कह रहा हूं कि एक को पकड़ लो, गलती नहीं होगी. और नाकडेम वाला प्लस कॉम में बनाएंगे. तो इसका मतलब ये हो गया सिंपल पास्ट. और ये हो गया पास्ट परफेक्ट. और पास्ट परफेक्ट कैसे बनाते हैं अब ये आपको पता ही है. पास्ट परफेक्ट प्लस कॉम हमेशा वारन पेज वाई, हाटन पेज वाई.
प्लूसकॉम परफेक्ट बनाएंगे हमेशा वारन पेशवाई ओडर हाटन पेशवाई, इससे बनेगा। हम जयपुर आए 2000 में। हमारे 2000 में जयपुर आने से पहले मेरे दादाजी घर बेच चुके थे। कैसे बनेगा ये सेंटेंस? पहले घर बेच दिया, पहले हम आ गए यहां, तभी तो आए नहीं। ओके, सो कौन सा सेंटेंस किससे बनाए? Before we are not Jaipur, कॉमन before we are not Jaipur, कॉमन yeah, common. या बिफोर वियर नाक जयपुर कामन hatte mein Opa das Haus verkauft. Bevor wir nach Jaipur kamen, hatte mein Opa das Haus verkauft. पहले एक्टिविटी कौन सी है? फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी है? बिफोर वाली कौन सी एक्टिविटी, फर्स्ट या सेकंड? ये सेकंड एक्टिविटी, और ये वाली एक्टिविटी फर्स्ट है। तो इसका मतलब ये है कि इसी चीज को हम नाकडेम से भी बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा? इसी चीज को अगर नाकडेम से बनाएंगे तो नाकडेम तो इधर लगेगा, जिधर नाकडेम है वो एक्टिविटी फर्स्ट है, तो नाकडेम से भी बना लेते हैं। नाकडेम नाकडेम के बाद में सब्जेक्ट, नाकडेम mein Opa das Haus verkauft hatte kamen wir nach Jaipur. So Pluscuam परफेक्ट und Präteritum का कॉम्बिनेशन। या अब मान लो कोई बोले मेरी ड्रीम गर्ल मिलने के बाद मैंने शादी की, अगर ये सेंटेंस बनाए, या फिर मेरी शादी होने के बाद मुझे नहीं ड्रीम गर्ल मिली, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, दोनों का मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा, भाई पिटाई हो जाएगी ऐसे तो। सो नहीं, मेरी ड्रीम गर्ल मिलने के बाद मैंने शादी की, कैसे बोलेंगे इसको? तो दोनों काम हो चुके, शादी भी हो गई, ड्रीम गर्ल भी मिल गई, लेकिन पहले क्या हुआ? इश, देखो दो सेंटेंस है, इश हाइराटेट है एक सेंटेंस है, इश हाइराटेट है मैंने शादी की, इश हटे माइनर ट्राउम फ्राउ गिफुंडन, ये दूसरे दो है फैक्ट। सो पहले कौन सा हुआ? या बिफोर इश हाइराटेट है हाटे इश ट्राउमफ्राउ
गेफुंडन। इसको अगर नाकडेम से करूं, meine Traumfrau gefunden hatte, heiratete ich। सो बिफोर से भी बन गया, नाकडेम से भी बन गया। और ऐसे हो तो nachdem geheiratet hatte, fand seine Traumfrau। ग्रामेटिकली तो सही है ना, ग्रामेटिकली तो सही है, दुख है इसमें। क्लार सर एक डाउट है। यस सर जो ये फर्स्ट सेंटेंस था ना, स्काउटे माय आइडियाज आउटो नाकडेम की शायद जॉब बिफोर नाकडेम, तो इसमें कॉमन नाकडेम के बाद लगेगा और पहले लगेगा? नाकडेम तो कनेक्टेड है ना, तो पहले लगेगा कनेक्टर से। वाइल में पहले ही तो लगाते हो, वेन में पहले ही तो लगाते हो। हाँ नाकडेम वन वर्ड है, नाकडेम नाकडेम। बिफोर भी एक ही है, नाकडेम भी एक ही है, नाकडेम und bevor। क्लियर? ये हम फिक्स कर लें तो फायदे में रहेंगे। ये अपने तो ये एक ही फिक्स कर लो बस कि नाकडेम वाला पार्ट में हम लोग हमेशा पास्ट परफेक्ट का बनाएंगे और बिफोर वाला प्रेटेरिटुम सिंपल पास्ट। बिफोर वाला सिंपल प्रेटेरिटुम, सेकंड वाला पास्ट परफेक्ट मींस वा। हाँ Traumfrau gefunden, यस बिल्कुल ऐसे कर लो, बेटर रहेगा। और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं लेकिन मैं केवल एक ही बात करना चाहता हूं ताकि दिमाग में क्लैरिटी रहे। सिंपल सिंपल पास्ट प्रेटेरिटुम, दोनों ही पास्ट की घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, दोनों पास्ट की हैं और एक से पहले दूसरा काम हो चुका है। जो पहले हुआ वो एक्टिविटी फर्स्ट है, जो बाद में हुई वो एक्टिविटी सेकंड। तो पहले काम हो चुका वो पास्ट परफेक्ट है, बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट है। ओके क्लार, das war dann bevor und nachdem। आपको एक दो सेंटेंस और बनाने तो बना सकते हो आप, ताकि आपको कंफर्ट है। यस प्लीज। मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। सो गाड़ी का डिपार्चर करना होता है abfahren, abfahren। सो abfahren का तो क्या हो जाएगा, abgefahren, abgefahren हो जाएगा पेज 5 में, तो abgefahren और इसके साथ लगा देंगे हम वार। और मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले erreichen, erreichen का हो जाएगा erreicht है। तो आप ये बताओ कि एक्टिविटी फर्स्ट तो ट्रेन का जाना है, तो इसका मतलब है ये वाला सेंटेंस तो बनेगा तो या तो नाकडेम से बनेगा, तो बनाओ नाकडेम ट्रेन गई ना पहले,
तो nachdem der Zug abgefahren war, erreichte ich also zum Bahnhof. Kam ich zum Bahnhof, erreichte ich am Bahnhof. Das ist dann Aktivität 2. Kam ich zum Bahnhof, गाड़ी के निकल जाने के बाद मैं रेलवे स्टेशन आई, पहुंची. अराइव्ड, ओके. अनकॉमन, काम इस अन भी कर सकते हैं. और अगर इसी को नाकडेम से बनाए तो हाँ, नाकडेम तो हो गया. अब बिफोर से, अब बिफोर में तो कौन सा होगा काम? ये वाला होगा पहले. बिफोर, ओके. बिफोर इश आई ना, लास्ट में तो है ये. या वर्ब नाउ, वर्ब war der Zug abgefahren. ना वार, अब फारन जाइन लेती है ना अपने पास. जाइन का तो हो जाता है पास्ट वारन, और हाबन का होता है हाटन. तो पेश वाई के साथ कभी वारन आएगा, कभी हाटन आएगा. ये इस बात पे डिपेंड करता है प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग कौन सी वर्ब को जाइन के साथ यूज करते हैं. क्लार, सर ये फॉर्मूला एक बार लिख देंगे, मतलब अगर बिफोर यूज करना है सिंपल पास्ट प्लस ये लिख दिया मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी. देखो इधर, यहां लिखा मैंने बिफोर जो है उसका मतलब है से पहले, बिफोर. दिस इज एक्टिविटी सेकंड, और इसको हम लोग सिंपल पास्ट में बनाएंगे. नाकडेम का मतलब है के बाद, आफ्टर. दिस इज एक्टिविटी फर्स्ट, इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में प्लस कॉम में बनाएंगे. यही फॉर्मूला है. ये वैसे ही है. व्हेन कहां यूज करते हैं अपन? एक सेंटेंस नॉर्मल यूज किया तो व्हेन से वर्ब लास्ट में चली जाएगी. अगर कनेक्टर को ही शुरू में ले लिया आपने तो इधर वर्ब पे खत्म और दूसरा वर्ब से शुरू. व्हेन की तरह ये है. हाँ, उसी तरीके से. यस, जोर से बोलो, सबको सुनाएंगे ना तुम्हारा सेंटेंस. Bevor ich zum Institut kam, hatte mein Unterricht gemacht. या सो मैं इस इंस्टीट्यूट आने से पहले दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ चुका था. तो मतलब मैं यहां आया और उससे पहले और भी कहीं पढ़ चुका था. तो दो काम हो गए. Bevor ich zum Institut kam, hatte mein Unterricht gemacht. ओके, मतलब मैं इंस्टीट्यूट आया उससे पहले क्लास खत्म हो चुकी थी, ये कहना चाह रहे हो. ओके, सो क्लास वाज ओवर. Nachdem der Unterricht fertig gewesen war, nachdem der Unterricht so fertig gewesen war,
Sum Institute. Come Sum Institute ना अंशुली को वास मार्क्स तो दे Sum Institute. सो इंस्टीट्यूट में जो आया ये एक्टिविटी सेकंड है, क्लास तो पहले ही खत्म होगी या फिर ऐसे बोलो बिफोर इज Sum Institute काम war der Unterricht schon fertig gewesen. Ja. Ja. Beendet. What is this nach dem Unterricht fertig? gewesen war. क्लास खत्म हो चुकी थी, उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट आया. अगर कोई बोले कि डॉक्टर ने विजिट किया, पेशेंट उससे पहले ही ओवर, तो दोनों ही काम हो गए. उसने विजिट भी कर लिया, अपनी ड्यूटी भी कर ली और पेशेंट भी नहीं बचा. तो पहले काम कौन सा हुआ? जरूरी थोड़ी है पहले वो मराई. हाँ, लेकिन दोनों ही तरीके के बन सकते हैं, है ना. तुम हर बार मतलब डॉक्टर पे ही. सो जाइन का गिविजन है, जाइन वार गिविजन. सो बनाओ. एक मिनट एक बार ये डॉक्टर वाला चल रहा है, उसके बाद में आप बनाओ. पहले ये देखो कौन सा है, बोलो राजीव. बिफोर देयर आर्ट्स काम gestorben जाइन लेगा. Bevor der Arzt kam, war der Patient schon gestorben. Nachdem der Patient ओके क्लार. यस बेटा, वेन से कैसे बना सकते हो? नाकडेम और बिफोर से बनेंगे. ये तो मतलब इसकी प्रैक्टिस कर रहे तो इससे बनाओ. वेन के भी बना सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे तो ये चल रहा है अभी. बोलो आप तो, कि आप हमको सिचुएशन समझा दो कि आपके साथ क्या हुआ. टिकट सारी बुक गई थी, सारी टिकट बुक हो गई थी, तुमको नहीं मिली, मतलब पिक्चर ही खत्म हो चुकी थी. तो इसमें नाक डेम और बिफोर से ही बनाएंगे ना, क्या दिक्कत है? पिक्चर तो खत्म हो ही चुकी थी. वेन क्यों करेंगे? अच्छा ठीक है, ट्राई करो. नहीं ऐसे नहीं बनेगा. ये दोनों पास्ट की घटनाएं हैं, उसी के लिए तो वेन और बिफोर बनाएंगे हम लोग. इस सिचुएशन में नहीं होगा. आप ऐसे कह सकते हो जैसे ही मैं पहुंचा, तो आल्स यूज करोगे, लेकिन वो अलग हो गया, इससे नहीं होगा. वो कह सकते हैं आल्स इश सुम कीनो काम एंडेटे देयर फिल्म. जैसे ही मैं कीनो पहुंचा और फिल्म खत्म हो गई, तो ऐसे लगता है दोनों काम साथ ही हुए, लेकिन यहां पे एक काम आगे एक काम पीछे, बट दोनों ही पास्ट की बात है. लेकिन तुम गए जब तक तो फिल्म ही खत्म हो चुकी थी, तो इसलिए ऐसे
एक थोड़ा पहले और एक बाद में, ऐसे। तो ऐसे सेंटेंस इसी में करेंगे, दोनों पास्ट के हैं। सो ये बनाओ भाई, ये फिल्म सिनेमा हॉल पहुंचा, उससे पहले फिल्म खत्म हो गई। बिफोर एयर इन स्कीनो काम और अराइस्ट है। बिफोर एयर इन स्कीनो काम वर्ब कौन सी यूज कर रहे हो? फिल्म खत्म हो चुकी थी, एंडन वर्ब। सो हट एंडेड, their film ended एंड हो जाना। इसको तो वही मिला लास्ट में, 10 एंड है। सो बिफोर एयर इन स्कीनो काम हट देयर फिल्म शोन बे एंडेड। और नाकरेम से उसके आने के, नाकनेम से कैसे बनाएंगे इसको? यस, नाकडेम देयर फिल्म गेंडेड हटे कम एयर या nachdem der Film geendet hatte, kam ins Kino. Ja? Klar? One more. एक कनेक्टर और ले लूं? Okay. Then we'll take ये डेस्टो, ये डेस्टो, ये डबल कनेक्टर है। अभी तक आपने सिंगल कनेक्टर के साथ खेला, ये डबल कनेक्टर है, मतलब एक में ही दो आएंगे। जनरली अभी तक आपने या तो व्हेन यूज किया, या बिफोर किया, या नाकडेम किया, या आल्स किया, या फॉल्स किया। अब हम लोग दो कनेक्टर यूज कर रहे हैं इसमें। ये जितना द मोर द बेटर, लाइक द मोर द बेटर, इस टाइप का, जितना उतना। डेस्टो को कभी कभी लोग उमजो भी बोल देते हैं, उमजो, डेस्टो, उमजो एक ही बात है। सो हियर इट इज ये, एंड विद ये देयर विल बी कंपैरेटिव। एंड विद डेस्टो देयर कंपैरेटिव। एक दो सेंटेंस बनाऊंगा, फिर आपको इसको मेरे को बताना है कि ये के साथ कंपैरेटिव और डेस्टो के साथ भी कंपैरेटिव। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, ये मेयर wir arbeiten Komma desto mehr lernen wir। ये मेयर wir arbeiten desto mehr lernen wir। दो तीन सेंटेंस बनाऊंगा, तब जाके आप सही सोच पाओगे इसके बारे में।
ये विनेगर where CO2 produzieren, desto besser ist es für uns. Next. ये मेयर wir Solar oder Wind Energie verbrauchen, desto weniger Bäume müssen wir abschneiden. ओके, ये तीनों सेंटेंस पहले एक बार देख लो, उसके बाद में अपना सेंटेंस बनाओ। इन तीनों सेंटेंस को देख के पहले आप ये बताओ कि इसमें रूल क्या समझ में आया आपको, देन मेक योर ऑन सेंटेंस। सर कंपैरेटिव हमेशा सेकंड कंपैरिजन करेंगे, मतलब ये के बाद आएगा सेकंड पोजीशन में, वो कहते हैं कि ये के बाद आएगा और वर्क हमेशा एंड में आएगा उस सेंटेंस में। मतलब आप कह रहे हो कि ये वाले पोर्शन में सेकंड, ये वाले पोर्शन में ये के जस्ट बाद में कंपैरेटिव और उसी सेंटेंस के एंड में कॉमा से पहले आएगा वर्क। एंड वर्ब, ओके, या और दूसरे में वर्ब एंड, ये हो गया पहले का पार्ट, ये रूल हो गया एक तीनों में, ओके। एंड इधर ये वर्क सेकंड पोजीशन वर्ब सेकंड पोजीशन, नहीं वर्क नहीं, सॉरी ये भी सेम रहेगा सर, जैसे डेस्टो के बाद कंपैरेटिव आएगा उसके बाद वर्क। डेस्टो के बाद में कंपैरेटिव, इसमें भी वर्क लास्ट में आएगा ये सब्जेक्ट, इसमें तो आया नहीं सब्जेक्ट लास्ट में। नहीं है तो चलेगा, लेकिन आएगा तो लास्ट में आएगा। Und wir uns und कुछ भी है ना, थर्ड में बहुत रेयर है, थर्ड में नहीं है, सबसे लास्ट वाला में। ओके, हाँ, थर्ड में नहीं आता। आमंडे एक सर इसमें ये भी बोल सकते हैं ना सर, जैसे कि फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें अपना कार्य है और एंड सेकंड जो बंदा ना उसमें रिजल्ट है उसका, कि पहले ये अगर होगा तो आपको इसमें बेटर रिजल्ट मिलेंगे। जैसे पहले मैं पढ़ूंगा तो मैं उसमें अच्छा सीख पाऊंगा। ओके ओके, या je mehr wir Solar, Wind, Energie verbrauchen, desto weniger Bäume müssen wir dann abschneiden. Okay. हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। हाँ तो वो सब्जेक्ट में वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे। लास्ट पोजीशन इसमें अपने तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जिस वर्ब का कंजुगेशन होगा वो सेकंड पोजीशन पे रहेगी। सेकंड वर्ड तो मुडाल है तो मुडाल का कंजुगेशन होगा, और नॉर्मल वर्ब है तो नॉर्मल है तो उसका हो जाएगा। ओके, ऊपर वाले में जैसे फर्स्ट वाले में मोडाल नहीं है, इसलिए वहाँ पे वर्ब एंडिंग जो है वो सब्जेक्ट से हुआ है, और तीसरे वाले में इसमें मोडाल वर्ब है तो इस वजह से एंडिंग वर्ब से हुआ है। पहला वाला तो मुझे समझ आ गया, ये प्लस कंपैरेटिव एंड वर्ब एट द एंड, ये प्लस कंपैरेटिव और उसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट एंड वर्ब लास्ट में, ये प्लस कंपैरेटिव, ये एंड कंपैरेटिव, उसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट और वर्ब एट द एंड। ये तो फिट जा रहा है फॉर्मूला। ये उधर वाला भी सेम ही है क्या? ये भी सही है ना सर, डेस्टो विनेगर ब्लाउमा म्यूसन मोडा
कॉन्जुगेट अपन देर से कर रहे हैं तो म्यूटेशन ठीक कर रहे हो। अगर मॉडल वर्ब नहीं होती तो यही एब्स्ट्रैक्शन पहले आ जाता और सबसे कम इसको कंपैरेटिव के बाद में वर्ब एंड देन प्रोनाउन और नाउन। ओके, सो कुछ सेंटेंस और बनाते हैं। Shall I try for one? यस प्लीज। ये besser, wir kochen, desto besser, schmecken essen. डेस्टो बेसर स्मैक्ट एस। ओके, या ये besser ich koche, desto lecker ist es. डेस्टो लेकर स्टेस, या ओके। ये मेयर साइट वियर इन्वेस्टियरन। ओके, ये स्नेलर वियर आर्बाइटन। आर्बाइटन desto mehr verdienen wir। देखो यहां पे डेस्टो मेयर मतलब ये जो डेस्टो के बाद में जो कंपैरेटिव है मेयर और बेसर, ये जो कंपैरेटिव है इसके जस्ट बाद में क्या आ रही है इन दोनों में, और इसमें कंपैरेटिव के बाद में नाउन आ गया, फिर वर्ब आई है। और इसमें भी नाउन, इसमें देखो डेस्टो के बाद में जो कंपैरेटिव है उसके बाद में नाउन आ गया, फिर वर्ब आई है। तो इसका मतलब है इसमें हम लोगों के पास अगर नाउन हो तो वो वर्ब से पहले आएगी। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कोई बात नहीं, कंपैरेटिव जो आया है मेयर गेल्ड, ये तो है तो एक ही चीज, एक ही चीज कंपेयर कर रहा है। इसके साथ ये लग भी गया तो कि ये इट्स टुगेदर वन एलिमेंट ओनली। द लेस ट्रीज, अगर कोई नाउन आएगा तो कोई बात नहीं, आ सकता है, इसके लिए हमको ओपन रहना है। हर बार नहीं आएगा बट कभी कभी नाउन आएगा तो दैट वुड बी सिंगल एलिमेंट ओनली, सो उसको फिर भी हम लोग वर्ब की पोजीशन सेकंड ही मानेंगे, और नहीं तो नहीं आएगा। ये मेयर जेट्स वियर श्राइबन डेस्टो बेवुस्टर वेर्डन वियर। जितने ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे उतने कॉन्फिडेंट बनेंगे हम लोग। ये योफ्टर वियर आल्सो स्प्रेशन डेस्टो डॉइटलिशर स्प्रेशन वियर। क्या था डेस्टो? तो जितना ज्यादा अपन बोलेंगे उतना अच्छा बोल पाएंगे। हाँ, ये मेयर वियर, ये योफ्टर वियर एक्सप्रेशन, ये योफ्टर वियर über das Thema sprechen, और ये das Thema hier, Moment, oh Entschuldigung, das ist weg, Thema ist hier, das Thema ist hier, okay, kein Problem. Urlaub machen. Das ist das Thema. Urlaub machen. Oh, sie ist schon weg. Ja. Das ist aber klar, ne? After wir über das Thema sprechen, desto deutlicher und bewusster sprechen wir.
उतना ही क्लियर और कॉन्फिडेंटली हम लोग बोलेंगे। ये डेस्टो deutlicher, clearly, confidently,